लोगों को पैसा ही समझ में नहीं आता. People not understanding money is a hard and dark fact. क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तो वांट ही. क्रेडिट कार्ड क्यों यूज करता है मेरे को मालूम नहीं. मैं हमेशा बोलता हूँ क्रेडिट कार्ड है आपके पास तो सीजर ले लो, काट के फेंक दो. ग्रीड और नीड में तो फर्क है, और वो फर्क सबको समझना पड़ेगा. today we have someone with us, and today's podcast is going to be more knowledgeable for you. You may be 30, you may be 35, 40, 50, 60, whatever age. For you, it's going to be important. You must listen to this, the whole podcast. The information what you will get, the tips what you will get, the kind of secrets what he's going to reveal to us will be very crucial for you in your decision making in finance and real estate. I've invited today Mr. Sachin Kaskar, and the credibility of Sachin Kaskar is he has got the experience of more than a decade. He's worked in corporates at a senior management level. And when someone work at that level and then leave that company and start his own startup, own company, there's a lot of sweat involved. There's a lot of sweat equity involved. And when they do it in style. They do it with passion. Generally people having credibility of, they complete their graduation. Similarly, Sachin also did his graduation and then he did his finance and marketing MBA. Also did a lot of certification courses through Harvard University on different levels. Now, this is not important for him. For him, what is important is what he's doing today. He always tells me that what my education background is not important. What I do, direct experiment with clients, which should bring them result. And those results has to be positive only. There's no deviation. There cannot be failure because it's going to be very expensive for his clients. So today, if you are an investor into real estate, if you are an investor into finance, you are doing some mutual funds, you are doing stock trading, and any of this diversified investment, here's the person who can guide you. Stay tuned for the whole podcast, and you will have an amazing time, with especially with the kind of tips he's going to share. Let's straight away go to Sachin. Sachin, welcome to the podcast. Thank you so much for coming over here. I know you're busy, but thank you for giving us time. And generally, when we start a podcast, we ask people how they started. Yes. So, how has been your journey into finance? How has been your journey starting from a corporate level, and today you are an entrepreneur and inspiring a lot of people. So, Yes. please tell us something about yourself. Yes. First of all, thank you, Prasad, for this opportunity. Uh, I really feel what you're doing is a great initiative. Simply because people always get, you know, information in bits and pieces about, real estate, finance, and other products. But here, when you're doing a thorough podcast, okay, and it's one of its kind. I know I saw your previous podcast as well. So it really allows people to have a comprehensive uh, equation of knowledge, and that's very important. And so I really appreciate that. As far as my journey has been concerned, like uh, 20 years of experience in finance uh, is what actually made my foundation. So, I said 1 decade, but actually, Yeah, it's yeah, 2 decades. yeah. It's 2 decades, and that's the foundation. And working in corporate actually allows me to put things in processes and system, because when you work for an organization, you get that organizational mindset, and that has been a very big benefit for me. 2015 onwards, the entrepreneurial journey started. Okay, prior to that, I was working in insurance companies and in banks, and always into finance field. Oh. And so becoming a financial advisor was a natural jump for me from 2015 onwards, and it was quite interesting. We uh, did this from 2015 onwards, and it came to a very good level. At that point of time, there is always that urge to do more, to do more. So somewhere in 2021, okay, I also got into building something for from the technology point of view, because technology was something that was future. So I just thought, how can I consolidate my experience and offer it into a technology product to other advisors as such. So then we started MyFinergy. MyFinergy is basically a sales tech platform for financial advisors
or you could say financial distributors who are at present who wants to upgrade themselves into financial So advisors. you have any story for this My Finergy, the name? How did it came? Oh, see, my Finergy, basically it's my financial energy. Oh, okay. Like how you have stamina, or how you need stamina to complete a marathon race or to do any physical task as such. You will need some amount of financial energy, a good amount of financial energy to complete your financial task or financial goals in life. So what we do in our application is we test the financial energy of the client. Okay, we allow advisors to test it, and on those parameters, an advisor can actually guide the client as to how to improve the financial energy so that it can match with the financial goals that they have. So when did you realize that people don't understand money? So, and your product, your services could help customers, help the direct clients in understanding how they should take their finances and the diversification of their portfolio. When did you realize it? Uh, People not understanding money is a very hard and dark fact. Today, you look at it, people are spending their future money, Okay. Like you know, credit cards, you mean to credit say. cards or loans, Yeah. and they are paying off forever for those future money that they are spending today. Okay. Now, if you ask me, is it wise? No. Is there a lesser education on this? No, there is education across. Hmm. But human beings are quite naive or foolish as far as handling money is concerned. And that's where I realized that financial advisors can play a very, very important role in changing people's life. Okay. And our whole motto is to ensure that as financial advisors, one thing that you need to do properly is to change people's life as far as their financial growth is concerned. So you also told me about Be Smart and Finergy. Yeah. So what is the difference between these two companies? What are they doing individually? Yes. BeSmart is a wealth management company. We do financial planning for our clients, financial goals management for our client, and that's the core advising business. Finergy came little later because we were into financial. I initially started as in the corporate world, and then I only saw the half picture. We thought that if you motivate the agent, if you give them rewards, recognition, agent performs. Okay. Yeah, I mean, I was into insurance industry, so that's where the half learning came in. But when I became an advisor myself, I know the another half learning came Yeah. in, Yeah. because I realized that it is not very easy because someone is giving you motivation or someone is giving you that carrot of motivation. That things don't happen. Customers don't buy insurance product or financial products that very easily. It's a very, very difficult sell. It's a pushy sales. So how many avenues of investments are there in your portfolio? Like Yeah. I know few mutual fund, then fixed deposit. So how many are there in this, including real estate? Does real estate become a part of the portfolio? Yes, of course. If at all we have to offer a proper portfolio mix for the client, real estate has to be there. Okay. Along with real estate, we also have other avenues. Like, we also tell clients to buy physical gold, because to balance your portfolio in the worst case scenario, you also need a physical asset like gold, which is a global commodity, right? So we have all investment options available for the client, which makes a client's portfolio a perfect mix. And yes, real estate also is a very important So- part of it. I want to ask you this very straightforward Yes. question. Like how many FDs do you have? I don't keep a lot of money in FD. I just keep my emergency fund of 6 to 9 months in FDs. That's it. So 6 to 9 months of Yeah. the Yeah. the expenses you meant to say. Yes, and that's split between FDs and some liquid cash with me, because over and above that, parking money in FDs in today's scenario wherein inflation is higher than the rate of returns, it is not a wise decision at all. And I would recommend this to everyone, to have maximum 9 months of saving as emergency fund in Emergency FD. fund. Beyond that, invest that money. Yeah, so basically, a lot of people, when we see the YouTube channels, a lot of people talk about the fixed deposit and they say it's a foolish deposit. Why do you do it? So it doesn't give you much returns. It's just money is safe, Yes. or probably not even safe. It Yes. is certain Yes. certain amount. Yes. Beyond that, it's not safe. Yes. So how do you rate
the avenues of investment, like let's say mutual funds, FDs, stocks, gold, real estate. So do you have that listing? The priority wise, I mean to say. Yeah, see, if you are starting first, okay, uh, if you are someone who is just starting, the first foremost investment that you should have is mutual fund SIP. Oh, okay. Okay, that's something today is very relevant. I would not consider fixed deposit as an investment. As I told you, it is an It's emergency an fund. emergency fund. Okay, post that you could look at direct equity as well. Many times for small retail investors, real estate does not become possible very easily unless they take a loan. So hence, with loan, real estate combined with loans is not at all a good investment, because then the rate of interest or the loan and the returns doesn't make sense. These two are the priorities, like in that order, like mutual funds, then maybe to a certain extent direct equity as such. And if at all you have enough money to buy a property without loan, of course real estate has to be part of it. Okay. Initially, real estate, which could give you a recurring income, a commercial property would make sense. Okay, so commercial property, then residential, and then probably the land. Then the land, because land is has can give you much higher returns compared to the other But avenues it of can't real give estate. you a recurring income. Like how Can't give you a commercial. recurring income, so you have to hold it. Hmm. You have to hold it, and at some point of time, after 5-6 years, it is going to give you amazing returns, but you need to have that capacity to hold it, and you need to have that much of patience to wait for it, right? Okay. And buying a parcel of land is not that very easy also. You need that much of lump sum It's money. scarce. It's Yeah, a lot of it's- demand, no supply. Yes, yes. So I would rate it in that order. Of course, at some point of time, you also need to have gold as part of your commodity mix. And as you go higher and higher, there are alternate funds, alternate investment funds. Like a lot of my clients are investing today into startups, okay, through us, because we advise them to diversify that. So that also becomes part So of that's your a very portfolio. important critical subject which I'll come to Hmm. you later. Hmm. But today, if I have to ask you that why people should listen to Sachin, Yes. because you were into insurance background, you Yes, have worked yes, in companies yes, at yes. corporate senior management level. Yes. There must be someone saying, Sachin, he just spoiled my portfolio. Sachin did not give me a good insurance. He did not Yes. give me a good portfolio, Yes, wealth yes, management. yes. Someone must have said something like that to you. Not till now, fortunately. And my intention right in the beginning, from when we started and to every activity that I begin, with the client, the intention of me and my company is very clear. We don't do mis-selling. We are very transparent. We position ourselves as advisors, not distributors. When you're not distributing a product, you're not pushing it to someone. When you're advising about a product, mis-selling gets avoided. Yeah. There are two things. One is सचिन कास्कर को हमको क्यों सुनना है आगे, हाँ. अब तक तो हम बात कर रहे हैं, हाँ. और दूसरे about agents, about real estate agents, about mutual fund agents. Yes. What impact आप क्या ला रहे हो उनकी जिंदगी में, क्या चेंज हो सकता है कि जो लोग सुन रहे हैं, अगर उन्होंने आपको फॉलो किया और आपके जो भी टेक्नोलॉजी को फॉलो किया, तो उनकी लाइफ में क्या डिफरेंस होगा? क्योंकि मुझे पता है कि 2003 के पहले भी वी वर इन द मार्केट एंड वी हैव सीन टू लर्न समथिंग, इट यूज्ड टू टेक 6 months to 1 year. और जब हमको ट्रेनिंग दी जाती थी तो हमें बताया जाता था 180 days to 365 days. और आज की तारीख में टाइम तो किसी के पास है नहीं. तो टेल मी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू नो द एजेंट्स एंड द नॉर्मल customers and why, Sachin? Okay. See, Prasad, today it is information age. Information सबसे बड़ा टूल है किसी के सक्सेस में. जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो किसी से 2 स्टेप आगे है. So today, the buyers who are listening us, for them we will try to share some practical tips on financial management and suggest them some growth strategies as well. So उनको वहाँ पर benefit we'll try to give. Okay. And as far as advisors are concerned, who are listening to us, financial advisors who are listening to us, उनको हम लोग समझाएंगे कि why they have to prepare for financial goal management of their client and how our technology can help them achieve that, upgraded level of from a distributor to a financial goal planner.
सो बेसिकली मतलब हमें अगर कोई सुन रहा है 30 इयर्स का हो, 40 इयर्स का हो, 50 इयर्स का हो, तो उसके लिए शायद वो टाइम सेव हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है सो व्हेन वी वर लाइक 20 इयर्स बैक, कोई भी फाइनेंस की चीज़ें समझने के लिए दे टू से कि 180 डेज लगेगा या 1 साल लगेगा. सो इज सचिन रिड्यूसिंग दैट टाइम? एब्सोल्युटली, आई यू नो 20 साल में जो मैंने सीखा है, आई ट्राई टू कंप्रेस इट इन दिस 1 आवर पॉडकास्ट. हाँ. सो मतलब जो एक्सपीरियंस आया, ऊपर नीचे आया, क्लाइंट्स को एक्सपीरियंस किया, प्रोडक्ट के बारे में लर्न किया, एक थोड़ा कैप्सूल के फॉर्म में दे देंगे आज. So your Finergy and Be Smart will also help people to understand the financial products, including real estate, Yes. faster with your company. Yes. See, real estate per se is a part of the entire portfolio mix. Hmm. So, हम लोग समझाएंगे क्लाइंट को कि आपका पोर्टफोलियो मिक्स कैसे होना चाहिए. ओके, व्हाट आई एम फोकसिंग ऑन टुडे इज कि क्लाइंट को क्या पोर्टफोलियो मिक्स, आइडियल पोर्टफोलियो मिक्स कैसा होना चाहिए, कैसे रिस्क मिटिगेट करना चाहिए, हाउ कैन दे प्रिपेयर फॉर फाइनेंशियल रिस्क इन फ्यूचर, एंड हाउ दे कैन मैक्सिमाइज द ग्रोथ रिटर्न्स ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स. तो आपकी वजह से तो रियल एस्टेट एजेंट का तो धंधा चौपट हो जाएगा. इनफैक्ट बढ़ेगा, बिकॉज सी देखो, जो एडवाइजर, जो रियल एस्टेट एडवाइजर सिर्फ स्पेस बेच रहा है, साइज ऑफ द प्लॉट बेच रहा है, उसका धंधा आगे चल के मेरा एस्टिमेट है कि उतना ग्रो नहीं करेगा, बिकॉज क्लाइंट्स आर चेंजिंग. लेकिन जो एडवाइजर वैल्यू बेच रहा है, जहां पर आरओआई एक्सप्लेन करेगा, लॉन्ग टर्म क्या बेनिफिट होगा क्लाइंट के लिए समझाएगा, ड्यू डिलिजेंस बताएगा, क्लाइंट को कहां पर आपका रियल एस्टेट फिट होता है इसके ओवरऑल पोर्टफोलियो में समझाएगा, उनके लिए तो मेरा पॉडकास्ट, आई थिंक व्हाट आई एम टेलिंग देम शुड हेल्प देम, because that's what the future is. Clients in future are looking at a holistic planning and holistic advice from real estate advisor or a financial advisor. सो मैंने देखा है कि कभी भी रियल एस्टेट परचेज होता है तो मोस्टली वो इमोशनल डिसीजन होता है. तो अगर जैसे कोई मान लो किसी को 1 करोड़ है और उसे कोई प्रॉपर्टी लेनी है, एजेंट उसे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी दिखाएगा, और अगर वो आपका एडवाइस, आपका क्लाइंट है, तो मतलब आपका या फिर सिमिलर जो पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं उनके पास जाएगा, वो बंदा उसे बता रहा है कि आपको ये प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए बिकॉज आपके पास पैसे नहीं है, या फिर आप लोन पे ले रहे हो तो आप तो यू आर इन डेब्ट, तो आपको ये अवॉइड करना चाहिए. सो उससे क्या हो रहा है कि ही इज नॉट एबल टू बाय दैट प्रॉपर्टी. इमोशनल डिसीजन है, इसीलिए इट्स नॉट अ फाइनेंशियल डिसीजन, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही मे नॉट हैव द प्रॉपर्टी, ही मे नॉट हैव अ होम आल्सो. तो इसको आप कैसे देखते हो? अगर प्रॉपर्टी इमोशनल डिसीजन है, मेरा घर है, मेरा ड्रीम है, तो खरीद लेना चाहिए. यू कैन मेक इट पॉसिबल, बिलीव मी. एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट अगर आपको वो ड्रीम है, इफ यू मैनिफेस्टेड इट फॉर लॉन्ग, ऊपर से हेल्प आ जाएगा, यू विल बी एबल टू डू इट. लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हो और अगर आपको एडवाइजर बोलता है कि आप लोन पे लोगे, बिकॉज कमर्शियल प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल 10-12% का लोन लाना है, तो और रेंट आएगा 5-6% का, अगर वो प्रॉपर्टी अगर ग्रो नहीं हो रहा है 10% के हिसाब से पर एनम, देन इट इज नॉट एट ऑल वर्थ इट टू इन्वेस्ट देयर, बिकॉज इन्फ्लेशन भी है, रेंटल कम है, इंटरेस्ट फैक्टर भी है लोन का, और ग्रोथ भी लिमिटेड है. तो इन्वेस्टमेंट है तो इमोशनल साइड में रखो. सो एक एजेंट के लिए जानना जरूरी है कि वो क्या बेच रहा है, सो दैट he can keep that buyer coming to him forever. Yes. It's more of like farming, which Yes. if they get support from the agents, get support from you, Yes. and if they learn financial advice Yes. along with real estate, Yes. probably they'll add more value. Absolutely. Absolutely. Because real estate अब exclusively मत देखो. जैसे मैंने बोला है कि today advisors have to sell value, and real estate guys have to sell value. और वहां पर financial calculations, अंडरस्टैंडिंग द आरओआई, अंडरस्टैंडिंग वेरियस एस्पेक्ट. लाइक मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर आज के डेट में अगर वी आर इन गोवा राइट नाउ, असलम इज अ वेरी हिट प्लेस, इट्स वेरी पॉपुलर. पीपल सबकॉन्शियसली ऑलवेज बिलीव दैट असलम में प्रॉपर्टी लेना मतलब अच्छा है, लेकिन आपको उसके 10-15 साल का प्राइसिंग स्टडी करो,
10-15 साल पहले, 15 साल पहले मे बी इट वाज एट अराउंड 8-9,000 रुपीज, टुडे इट इज एट 1.5 लाख रुपीज, सो ऑलमोस्ट 10x ग्रोथ आ गया है अभी यहाँ से, और अगले 5 साल में वापस 10x मिलना मुश्किल है। यस, Okay, so this is what you would this is teach. where the calculations come into picture, and this is where financial advising can help people to take the right decision. तो मुझे किसी ने कहा था कि यार आप घर खरीद रहे हो, उसमें आप लोन ले रहे हो, बैंक से पैसा उठा रहे हो, 20 साल का आपका EMI जा रहा है, यू आर स्टक इनटू दैट, और घर भी आपका नहीं है, घर तो बैंक का है, अगर आपने पेमेंट पे नहीं किया तो बैंक लेके चली जाएगी। सो हाउ डू यू एडवाइज पीपल इन दिस ऑन दिस ग्राउंड? होम लोन के लिए मैं एडवाइस करता हूँ, स्पेसिफिकली जो आपने एग्जांपल दिया, अगर आपने 2 EMI एवरी ईयर भरा, एक्स्ट्रा EMI, आप 12 EMI भरते हो, 2 एक्स्ट्रा EMI भरो, अच्छा, तो आपका लोन 6 से 8 महीना टेन्योर कम हो जाता है। 6 से 8 महीने कम हो हाँ, जाते तो हैं। अगर आप वो हर साल एक 8-9 साल तक करते हो तो आपका लोन टेन्योर जो है ऑलमोस्ट 6-7 साल कम हो जाएगा। सेकेंड थिंग आई टेल देम इज टू इन्वेस्ट 10%, अगर आपका EMI 50,000 है, Okay. तो 10% ऑफ दैट अमाउंट इज 5,000 रुपीज SIP में डालो। और ये लोग सुनते हैं? सुनते हैं, ओके, कैलकुलेशन दिखाओ, सुनते हैं, Okay. बिकॉज फाइनली उनका पैसा है। इफ यू एक्चुअली शो देम द रियलिटी कैलकुलेशंस, सुनेंगे। अगर आप उनको सिर्फ सेल्स पिच दे रहे हो तो नहीं सुनेंगे, कैलकुलेशन दिखाओ, सुन लेंगे। हाँ, तो जिसमें ये भी होता है कि किसी ने बताया कि आप घर क्यों खरीद रहे हो, अगर आपने 1 करोड़ का घर अगर आपने 30,000 के रेंट में ले लिया, तो यू आर पेइंग अबाउट 3.6% फॉर दैट हाउस, Yes. एंड यू आर नॉट इवन पेइंग दैट 1 crore, नॉट पेइंग EMI, यू आर जस्ट पेइंग 3.6 Yes. lakhs रुपीज इन अ ईयर। तो ये तो बेटर हो गया ना, फिर रेंट पे रहो, घर क्यों खरीद रहे हो? देखो, घर खरीदने के बाद ना आपको एक सुकून मिलता है। अगर आप फैमिली मेंबर हो, आपको एक घर चाहिए, इफ इट इज अ ड्रीम, Okay. थोड़ा इमोशंस उसमें अटैच हो, तो उस इमोशंस का वैल्यू आप करोगे तो परसेंटेज में कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, तो तब आपको घर खरीदना ही। ओके, आई एम जस्ट सेइंग दैट। लेकिन अगर आप आज की जेन जी है, मतलब अगर आज के लोग हैं जो एक्सप्लोरर है, ये सिटी से वो सिटी में जा रहे हैं, मूव होते रहते हैं। यस, देन टेक इट ऑन रेंट, ओके, या देन टेक इट ऑन रेंट। Correct. बट अगर आपको सेटल होना है, वो क्लासिक एक एड आता था पहले होम लोन कंपनी का, जहां पर एक बच्चा अपने वॉल पर ड्राइंग निकालता था, उसका खुद का घर नहीं है तो Yes. कितना मुश्किल है। And I think at some point of time, as the head of the family or the breadwinner of the family, if you are emotionally satisfied, Satisfied. कि मेरी फैमिली को मैंने कुछ इमोशनल सेटिस्फेक्शन दिया है इन टर्म्स ऑफ अपना घर, वो एनर्जी आ जाता है आप में टू वर्क मोर हार्डर, तो देन दैट प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन डजंट और मैटर। इसको मैं मानता हूँ, बिकॉज जब जब हमने प्रॉपर्टी लिया था तो हमारे लिए वो EMI पे करना इतना मुश्किल हो रहा था कि कभी कभी ऐसा लगता था कि लिया क्यों हमने। बट जैसे अपार्टमेंट बन रहा था, लेकिन जब वो बना, 1 साल बीत गया, जो हमारा जो EMI था आगे जाके वो उतना कुछ लगा नहीं, फिर वो लगने लगा कि बहुत, ये तो कुछ भी नहीं है। Right. 2-3 साल के बाद Right. और इजी लगने लगा, उसके बाद तो हमने उसको पे ऑफ करके भी उसको फ्री कर दिया। Yes. तो शायद ये 1-2 साल आपको लगता है पिंच, उसके बाद वो तो नॉर्मली हो जाता है। तो एज यू सेड, इफ पीपल आर मूविंग, जेनजी की हम लोग बात करें तो उनका प्रिंसिपल लोकेशन एक जगह नहीं रहती है, Right. तो दे कैन रेंट द प्लेस, और Right. इफ दे आर हैविंग अ प्रिंसिपल लोकेशन, इफ दे आर ग्रोइंग, इफ दे आर एक्सटेंडिंग देयर फैमिली, then they should buy a house. Yes. And it's a very convincing answer to my question, and of course I would love people to buy homes. आपको भी पूछना है ना, हाँ. फ्रॉम द एग्जांपल दैट यू गिव, दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको सुकून मिला था वो घर खरीदने के बाद? घर खरीदना तो आप कितनी बार भी बोल दो कि आप रेंट पे रहो, हाँ. आई विल ऑलवेज एडवाइज टू बाय अ होम, बिकॉज दैट इज वेयर यू कैन जस्ट गो एंड रिलैक्स, एंड नोबडी विल क्वेश्चन यू कि आपने ये क्यों किया, आपने वो क्यों किया। Yes. जब मैं भी खुद रेंट पे रह चुका हूँ, तो आई हैव सीन हाउ इट हैपेंस व्हेन पीपल क्वेश्चन यू फॉर इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ द चेंजेस व्हिच यू डू इन द हाउस। सो बाइंग अ प्रॉपर्टी इज Yes. by default recommended by me, Fantastic. not because I'm into real estate, but because I know how Yes, important it is yes. emotionally. Yes. So do you see real estate as a wealth making tool? मतलब इसमें पैसा बनेगा 2025 के बाद, क्योंकि प्रॉपर्टी प्राइसेस ऑल ओवर इंडिया बढ़ चुके हैं,
आप कहीं पे भी जाओ, आप गोवा में या फिर आप साउथ में जाओ, पर्टिकुलर हिल स्टेशंस में जाओ, तो रेट्स have gone up like anything. So do you see that investment right now in real estate individually is good, or you think that you will come out with some solution where people can invest wisely and in a diversified manner and affordable manner? इसके ऊपर आप कुछ बात कर सकते हो? See, at the first time, it all depends upon the existing portfolio of a client. अगर उसके पास already 50-60% real estate है, then I would not advise to have another real estate. Okay. Okay. अगर रियल एस्टेट का फर्दर माइक्रो लेवल बाइफर्केशन करते हो और वो रियल एस्टेट में अगर नॉन रेंटल इनकम टाइप प्रॉपर्टी है जहां पर आपको रिकरिंग इनकम नहीं है, देन इट इज ऑल द So you meant to say plots अगर है तो उसमें कोई recurring income नहीं है, बट लॉन्ग टर्म. हाँ, तो पोर्टफोलियो एनालिसिस इज द फर्स्ट स्टेप. एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो क्या है वो एनालिसिस इज द फर्स्ट स्टेप. अगर आप पूछते हो मेरे को कि रियल एस्टेट लेना चाहिए, अगर आपको प्लॉट मिलने वाला है, सिर्फ प्लॉट का एक अच्छा सीन है, प्लॉट अर्थ में सप्लाई ऑफ प्लॉट इज नॉट गोइंग टू वर्क, बिलीव मी. एवरीथिंग जितना है उतना ही रहने वाला है. हाँ, बाकी सब कमोडिटीज ना, मतलब अगर आप आम देखते हो, मैंगोज देखते हो, कैशूज देखते हो, सप्लाई अगर चाहिए, डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा. मेटल है, सिल्वर है, कुछ है तो यस कमोडिटी थोड़ा उधर, लेकिन गोल्ड सिल्वर का एट सम पॉइंट ऑफ टाइम that is also scarcity, but then anything that other is commodities. gold, silver, might be categorized as a similar thing, but land is going to become more and more scarce in terms of supply. Yeah, सबको चाहिए. हाँ, तो लैंड में अगर आप डालते हो पैसा और आपको अच्छे जगह पर लैंड मिलता है, अगर आपने एनालाइज किया कि आज ये जगह पर लैंड का प्राइस बढ़ने वाला है, there are various ways to find out. I'm just getting little deeper into it. For example, आप जाकर देखो कि रेरा साइट पे जाके देखो कि कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बिकॉज़ आजकल रेरा साइट में पूरा डेटा मिल जाता है. एनालाइज दैट डेटा एंड दैट एज अ बिल्डर्स कहाँ पे जा रहे हैं. Yes, that as a financial advisor we keep doing that calculation. We also see what is, like another example लेता हूँ, पर अगर उस एरिया में रेस्टोरेंट्स, तो per 2 people what is the average price of those restaurant, कंपेयर कर लो, समझ में आएगा कि what type of people are there. पेट्रोल पंप पे जाओ और देखो कि कौन सी गाड़ी आप पेट्रोल भर रही है. You will come to know the lot of factors about that locality. अगर all those factors are favorable, then probably investing, आपको लग रहा है कि plot can give you that kind of return. Plot is a very good investment because of the supply part and the demand part of it. लेकिन आपने सिर्फ अगर लैंड लिया और सोचा कि मैं 10-15 साल के बाद देखूंगा, and the factors are not at all available or information is not available. At that point of time, long term में 10 साल plus, mutual fund, as a product has always delivered more. Okay, so you are saying that it all depends on what is the need of that particular client, and accordingly that suggestion can come. Absolutely. Yeah. So also I have seen when it comes to the property price rising, there are some companies, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट प्रॉपर्टी का जो प्राइस है वो 5 गुना ज्यादा में बेचते हैं. तो एक पर्टिकुलर एरिया में, नॉर्थ इंडिया में कहीं पे भी एक लोकेशन पकड़ लो, तो वहाँ की जो प्राइस है अगर 5,000 पर स्क्वायर मीटर है, तो वहाँ पे 50,000, 40,000, 50,000 की रेट में वो कंपनियां मार्केटिंग करती है, वीसी पे प्रोडक्ट्स बेचती है. उसके बारे में आपका क्या मानना है? बिकॉज सी वो भी जो क्लाइंट्स रहेंगे वो भी आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं या फिर सिमिलर एडवाइजर्स में होंगे, लेकिन वो प्रोडक्ट ले लेते हैं. तो उनके लिए आपका क्या सजेशन है? अगर हमारे क्लाइंट्स हैं और हमको अगर पूछते हैं बिफोर बाइंग इट, मेनी ऑफ आवर क्लाइंट्स डू दैट, तो हम लोग ये फ्रेमवर्क में काम करेंगे जहां पर हम लोग एनालाइज करेंगे कि क्या ग्रोथ रेट है, व्हाट आर द अल्टरनेटिव ऑप्शंस, व्हाट इज योर पोर्टफोलियो मिक्स करेंटली, और सजेशन देंगे हम लोग अकॉर्डिंगली. एंड अगर ऑल दोस फैक्टर्स एनालिसिस के बाद पॉइंट आउट टुवर्ड्स यू दे हैव टू बाय, तो बाय करना चाहिए. हमारे क्लाइंट अगर पूछते हो तो हम लोग ये फ्रेमवर्क में एडवाइस देंगे. लेकिन प्रैक्टिकली बाइंग प्रॉपर्टी बहुत से लोग इमोशनल गट फीलिंग पे लेते हैं, बहुत सारे लेते हैं. आई एम नॉट श्योर वेदर इन फ्यूचर दे विल डू इट, बट एट प्रेजेंट एटलीस्ट दे आर डूइंग दैट, बिकॉज हमारा कंडीशनिंग वैसा है इन इंडिया में. रियल एस्टेट इज वेरी रियलिस्टिक
काइंड ऑफ एन एसेट, बहुत इमोशनल अटैचमेंट भी है रियल एस्टेट को, सुकून ज्यादा है, सिक्योरिटी फीलिंग ज्यादा है. सो मैक्स कोई नहीं देखता है वहां पे, यू नो. तो ये मेरा एक्चुअली सवाल था, आपने पहले जवाब दे दिया कि इसमें लोग क्या मिस्टेक्स करते हैं हाँ. व्हेन दे आर बाइंग अ प्रॉपर्टी, या फिर कोई भी प्रोडक्ट ले लो, तो बाइंग में उनकी मेजर मिस्टेक होती है, वो इमोशनली चले जाते हैं, उसमें फिर घाटा हो जाता है. सो मैंने भी इसमें ये देखा है कि व्हेन पीपल आस्क अस कि मैंने एक प्रॉपर्टी देखी है, आप मेरे को वैसी टाइप की प्रॉपर्टी दिखाओ. आई हैव सीन थ्रू माय एक्सपीरियंस, अगर उसने एक प्रॉपर्टी फाइनलाइज की है, हाँ. वो बाकी की प्रॉपर्टियां देख रहा है जस्ट टू गेट Satisfied. सेटिस्फाइड कि मेरी वाली अच्छी है. यस यस यस. उसके बाद वो वही प्रॉपर्टी लेगा जो उसने डिसाइड Decide किया. किया है. ही इज जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट कि अब उसका डिसीजन सही है या नहीं. Yes. तो दैट्स व्हाट यू आल्सो सेइंग कि इमोशनली वो लोग इन्फ्लुएंस्ड है इनफैक्ट उसमें. इसके लिए मैं एक और एक एग्जांपल देता हूँ. हम्म. यू नो माय फ्रेंड, यू नो, एक एक्चुअली स्टोरी है ऐसा, मतलब उसको एनालाइज किया, उसके कंज्यूमर बिहेवियर से एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज बाहर आई. ओके. He was looking for buying a flat, an apartment for him. So initially, for example, you know, not example, the owner was quoting some 1 CR. ओके. So 1 CR for that analytically is not the right price, because उसका प्राइस बहुत कम होना चाहिए था. ओके. तो इसने 80 lakhs का ऑफर दिया, तो उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड ना बोल दिया. मना कर दिया. तो मेरे को मेरे दोस्त ने फोन करके बोला कि दोस्त एज वेल एज इज अ काइंड कि मेरे को पसंद आया, दीदी को भी मुझे पसंद नहीं आया, आया. हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं, यू नो, एंड दैट पर्सन हैज ऑलरेडी ड्रीम्ड टू हाँ. लिव देयर, वहां से मैं बच्चों को स्कूल में पहुंचाऊंगा, ऑल दैट थिंग, यू नो, हैज हैपेंड. हाँ. सो ही इज सेइंग मैं उसको यू नो Finalize करना. 90 lakhs का ऑफर देता हूं. मैं बोला देना, आज मत देना, 15 दिन के बाद देना. अच्छा. बस 15 दिन के बाद ना तेरा जो डोपामिन रश है, जो हैप्पी केमिकल है, कम हो जाएगा, एंड देन यू स्टार्ट टेकिंग सेंसिबल डिसीजन. राइट नाउ व्हाट इज द इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर फॉर यू टू इमीडिएटली फ्रॉम 80 lakhs टू गिव 90 lakhs, 10 लाख का जंप, इज दैट हाई रश ऑफ डोपामिन. तो शायद उसको वो 90 lakhs में ना भी मिले, क्योंकि अभी उस हाँ. सेलर को पता है कि ये 90 नहीं, 1 करोड़ भी दे देगा. हाँ, मतलब और तब अगर इमीडिएटली अगले दिन वो 90 lakhs बोलता है, जैसे आपने बोला, एग्जैक्टली सही बात है, तो ओनर माइट नॉट बच डाउन ऑन द प्राइस. प्राइस आल्सो. या मैं हमेशा बोलता हूँ, इमोशनल सर्कल्स ऑफ इन्फ्लुएंस, बहुत सारे लोग, मेरे रिलेटिव ने, मेरे दोस्त ने प्रॉपर्टी लिया, तो मेरे को भी उधर लेना है. मेरे को भी लेना सो है. इफ एट ऑल इन्वेस्टर्स कैन मैनेज देयर इमोशनल बायसेस, they can take more prudent decisions. और वो जरूरी भी है, क्योंकि वो लाइफ टाइम का एक किसी के लिए वो एक प्रॉपर्टी लाइफ टाइम के लिए की एक होती है, Yes. किसी के लिए वन ऑफ द प्रॉपर्टी होती है, Yes. तो वहाँ तो फिर भी चल जाता है. बट अगर आपको सारा आपका पूरा आपकी जो जमा पूंजी है वो एक ही प्रॉपर्टी में लगानी है, तो Right. आपको डेफिनेटली नॉट इमोशनल, यू हैव टू बी वेरी, यू नो, यू हैव टू बी टेकिंग अ वाइजर डिसीजन बाय टॉकिंग टू पीपल. बट मैंने एक यहाँ पे भी देखा है कि जब लोग बहुत सारे लोगों को पूछते हैं रियल एस्टेट के बारे में, हाँ. मैंने प्रॉपर्टी देखी है, मुझे इसके बारे में सोचना है, एनालाइज करना है, हाँ. तो वहां पे ज्यादातर उससे लोग जो मिलते हैं वो नेगेटिव बताने वाले मिलते हैं. ये प्रॉपर्टी ना कैसे ले, Yes, आपको yes. ये क्यों नहीं लेनी चाहिए, Yes, yes. ये ज्यादा होता है. Yes. अरे इस प्रॉपर्टी वहां पे 5 किलोमीटर वहां पे एक क्रेमेटोरियम है, Yeah. वहां से एम्बुलेंस जाती रहती है, वहां Yes, एक हॉस्पिटल है. yes. ये किसी क्लाइंट ने तो 80 लाख में बेचा था पहले. Yes, yes. तो लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन पीपल आस्क फॉर द एडवाइस, Yes. द एडवाइस व्हाट दे गेट इन रियल एस्टेट इज इसको कैसे आप ना लो. Yes. तो व्हाट डू यू एडवाइस टू दोस फ्रेंड्स हु आर द सेवियर्स फॉर देयर. See, go to a professional advisor. सिंपल है, गो टू अ प्रोफेशनल एडवाइजर. अगर आप अपने दोस्त को एडवाइस पूछते हो, सिंपल है, मतलब बहुत सारे दोस्त आपको बोलते हैं, अगर आपका स्टमक में पेन है तो वो बोलते हैं ये टेबलेट ले ले, मेरे 2 दिन पहले स्टमक में पेन था तो मैंने ये ले लिया. यही साइकोलॉजी चलता है. और अगर आप उनको एडवाइस मांगते हो तो उनको एडवाइस देना पड़ता है, हाँ, देना ही पड़ता है. और तो मांगा है तो अगर देना वो पड़ेगा. आपके हाँ मिलाएंगे तो एडवाइस नहीं है. तो एडवाइस देने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ता है. सो आई एम सेइंग, यू नो, देयर माइट बी जेन्युइन एडवाइस एज वेल, Possible. बट वेरीफाइड फ्रॉम अ प्रोफेशनल लाइन. मतलब आपका अगर रियल एस्टेट एडवाइजर है, उससे पूछो. रियल एस्टेट कंसल्टेंट से पूछो या रियल एस्टेट
लॉयर से पूछो या जो भी Absolutely, उस कैटेगरी में है, उनसे बात किया तो Expert advice ले लो. एक्सपर्ट That is what एडवाइजर या I'm फिर saying. आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से, कैलकुलेशंस के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर फाइनेंशियल एडवाइजर। यू नो इन्वेस्टमेंट अगर डिसीजन है तो फाइनेंशियल कैलकुलेशन चाहिए तो फिर हमारे पास आ जाओ, फाइनेंशियल एडवाइजिंग हम तो लोग लोग तो बहुत बायस है ना, फाइनेंशियल एडवाइजर भी तो कितने बायस्ड है। अगर मैं अपने मतलब किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाऊंगा, उसे बोलूंगा मुझे प्रॉपर्टी लेनी है, बोले यार प्रॉपर्टी मत लो, इससे अच्छा एसआईपी में डाल दो, बहुत अच्छा इनकम होएगा, हाँ। तो वो तो बायस्ड हो गया ना। फिर इसको कैसे हैंडल? नॉट नेसेसरली। अभी जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, यू नो वी कम फ्रॉम प्रोफेशनल बैकग्राउंड, बहुत सारे एडवाइजर ने कभी कॉर्पोरेट में काम ही नहीं किया, उनका बैकग्राउंड है ही नहीं। उन लोगों ने ये पैसिव इनकम पार्ट टाइम जॉब चालू किया, फिर इसमें थोड़ा ज्यादा पैसा मिलने लगा तो इसमें फुल टाइम बन गए, ओके, क्वालिफाइड नहीं है, सो उनके पास वो कंट्रोल भी नहीं है टू कंट्रोल दे आर यू नो अर्ज टू सेल एंड टू यू नो एंड गेट दैट एडवाइस आउट ऑफ देम। बहुत से लोग सेलिंग मोड में जाते हैं बिकॉज दे हैव बीन डूइंग दैट, वेयर इज प्रोफेशनल्स लाइक अस बहुत सारे हैं हमारे तरह who have that professional control on the urge not to sell and to give advice. तो मतलब ये तो थोड़ा बहुत आप झूठ भी बोल रहे हो ना, क्योंकि देखो अगर आप बोलते हो कि क्रेडिबिलिटी है, आपकी क्रेडिबिलिटी है, आप पढ़े लिखे हो, आप इतने साल से कॉर्पोरेट में हो, आप कर रहे हो, बट जो आपके एडवाइजर्स होंगे, पीपल हु आर कनेक्टेड टू यू थ्रू फिनर्जी एंड स्मार्ट बी स्मार्ट, उसमें तो लोग ऐसे होंगे 10वीं 10th पास होंगे, 12th पास होंगे, तो वो तो आपके कैलिबर के नहीं है, वो आपके कस्टमर्स को, एंड यूजर्स को, या फिर कैसे उनको अच्छी सलाह देंगे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। एज फार एज बी स्मार्ट इज कंसर्न, वेयर हम लोग एडवाइस कर रहे हैं, हम लोग ये कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, जैसे आप बोल रहे हो कि फाइनेंशियल बाकी जो एडवाइजर्स फिनर्जी के थ्रू हमारे साथ जुड़े हैं, सिर्फ फिनर्जी एक बेसिकली देखो, अगर आपको एक डॉक्टर के पास जाते हो, एमबीबीएस डॉक्टर है, यू नो मैं बोल रहा हूँ क्वालिफाइड भी डॉक्टर है, लेकिन अगर वो आपको सिर्फ बोल रहा है कि देख करके लगता है कि आपको शुगर है तो वो बिलीव नहीं करता है, लेकिन आप उसको उसके ब्लड टेस्ट रिपोर्ट दिखाओगे और फिर बोलोगे कि आपको शुगर है, कल से मेडिसिन लेना है, तो आप 100% मेडिसिन लोगे। हम लोग का जो फिनर्जी टेस्ट है वो क्लाइंट को अपना पूरा फाइनेंशियल एनर्जी का रिपोर्ट देता है। जब रिपोर्ट पढ़ता है क्लाइंट खुद, तो एडवाइजर को ऑप्शन ही नहीं है कुछ उस रिपोर्ट के बाहर बात करने का। ओके, सो आप अपने एजेंट्स, आपके जो जुड़े हुए हैं आपके साथ के लोग, तो यू आर गिविंग देम अ प्लेटफॉर्म व्हिच विल probably help them to make reports for their clients, and that's how they become like you. Absolutely, the expert. Yeah, basically that is what we are doing. हम लोग क्या कर रहे हैं कि फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपग्रेड करके फाइनेंशियल एडवाइजर्स बना रहे हैं। वी आर गिविंग देम एंटायर फाइनेंशियल प्लानिंग का जो इकोसिस्टम है वो उनको हम लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं, so that they can step by step do financial goal planning, calculations, report analysis, सब रेडीमेड दे दें। और वी ऑल्सो एंश्योर दैट दिस रिपोर्ट्स आर रीचिंग द क्लाइंट। वो प्रोसेस ही ऐसा बनाया कि क्लाइंट के पास एनालाइज तो खुद अपना क्लाइंट डेटा डालकर करेगा और उसको जो आगे चल के एडवाइजर को जो एडवाइस देना है वो रिपोर्ट भी एडवाइजर को मिलेगा। सो वी हैव मेड इट अ वेरी कंसोलिडेटेड इकोसिस्टम फॉर बोथ एडवाइजर्स एज वेल एज देयर एंड क्लाइंट। अब तक कोई आया है जिसने बोला मेरे पास 1 करोड़ है, बताओ कहाँ डालना है, मेरे को कल इन्वेस्ट? बहुत सारे लोग हैं, रेगुलरली आते हैं। तो जैसे मैंने बोला, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है फॉर यू नो फॉर अस टू गिव एडवाइस। फर्स्ट थिंग हम लोग उनका हॉरिजन देखते हैं, ये पैसा किसका है। मतलब अगर कोई मेरे को फॉर एग्जांपल रिटायर्ड लोग है, उसको एक लमसम अमाउंट मिला है, अगर वो बोलते हैं कहाँ डालो, तो मैं उसको ऐसे पोर्टफोलियो उसका डाइवर्सिफाई करूंगा जहां पर उसका इमरजेंसी फंड भी हो, सिंकिंग फंड हो, थोड़े अलग चीजें हैं। लाइक फॉर एग्जांपल उसके बेटे या बेटी का शादी होने वाला है, तो उसके लिए वो इस पैसे से पैसा तो देगा ही देगा। सो वी डू ऑल दैट कैलकुलेशन फ्यूचरिस्टिकली। लाइफ एक्सपेक्टेंसी समझते हैं 82 ईयर्स का है, अभी उसका एक्सपेंस क्या है, इन्फ्लेशन पकड़कर आगे चल के क्या एक्सपेंस ग्रो होने वाला है, और वो अगर मैनेज करना है एक्सपेंस तो कितना फंड चाहिए, रिटर्न्स चाहिए, वो कैलकुलेट करके हम लोग एडवाइस देंगे। तो बेसिकली जो आपके साथ जुड़े हुए हैं लोग हैं, इतने सारे सैकड़ों में लोग हैं, तो दे विल जस्ट बिकम लाइक यू इफ दे फॉलो दिस प्रैक्टिस ऑफ गोइंग थ्रू द ऐप एंड देन गोइंग थ्रू द टेस्ट फॉर देयर क्लाइंट्स एंड दे कैन सजेस्ट जस्ट लाइक यू। एग्जैक्टली। अभी जैसे ये जेंजी है, लोग बोलते हैं जेंजी है,
कोई ऐसा आया है अभी आपके पास? हाँ डू यू हैव सम रियल स्टोरी की जिसमें जेनजी है और उन्होंने आपको सवाल पूछा है, जैसे हाँ मुझे भी एक बार सवाल हाँ पूछा था कि बिना पैसों के प्रॉपर्टी कैसे ले ले या बिना पैसों के पैसे कैसे बनाए? ये ऐसा कोई सवाल आया आपके पास? नहीं अभी तक तो नहीं आया बट नो अगर ऐसा कोई पूछता भी है कि बिना पैसे कैसे पैसा बनाए, सिंपल आंसर वुड बी स्टार्ट वर्किंग। ओके। तो मतलब मुझे भी एक बार सवाल पूछा था कि बिना पैसों के आप प्रॉपर्टी कैसे लो, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं कि बिना पैसे रहे आप प्रॉपर्टी कैसे ले सकते हैं। एक्चुअली दे टॉकिंग अबाउट द डेब्ट एंड ऑल दैट। हाँ सो डू यू सच लाइक आप लोन ले लो, फिर लोन से आप प्रॉपर्टी ले लो, हाँ लेकिन उसके लिए भी तो आपको काम करना ही पड़ेगा, आपका इनकम टैक्स फाइल करना हाँ पड़ेगा, क्रेडिबिलिटी लानी हाँ पड़ेगी, तब जाके आपको कोई लोन देगा। एब्सोल्युटली तो डू यू ऑल्सो सजेस्ट कि आप लोन लेके इन्वेस्ट करो कहीं पे भी और पोर्टफोलियोज में? जैसे 1 करोड़ किसी के पास नहीं है, हाँ लेकिन अगर 1 CR का पोर्टफोलियो अच्छा बनेगा किसी का, तो आप सजेस्ट करते हो कि लोन ले लो 50 लाख का या 1 करोड़ का और फिर आप उसका पोर्टफोलियो बनाओ? ऐसा कोई आया है? सी बहुत सारे क्लाइंट्स आज भी लोन लेकर ही प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हाँ। ठीक है, हम्म। नो विच इज अ गुड थिंग। कैलकुलेशन में अगर देखे जाओगे, इफ दैट प्रॉपर्टी इज गिविंग यू बेटर रिटर्न्स एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आप आधा आधा स्प्लिट करते हो, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का प्रॉपर्टी है, 50 लाख आप डाले हो, 50 लाख बैंक दे बैंक दे रहे हैं, तो आपको 12 समझ से 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अल्टीमेटली दैट एंटायर प्रॉपर्टी का जो 1 करोड़ का ऊपर जो है उस पर आपको 6% का एक्सपेंस पड़ जाए। If that property is a commercial property, for example, it's another thing I'm saying. उधर अगर आपको 6-7% का रेंट मिल रहा है, and that is getting covered. कवर्ड, या। And if that property is growing at 8 to 9%, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। ओके, सो इज इट ऑल्सो एप्लीकेबल? रियल एस्टेट में तो ठीक है, फिर भी मतलब पैसे बढ़ते हैं, आपको रिकरिंग इनकम मिलता है, बट इज इट ऑल्सो एप्लीकेबल इन द अदर एवेन्यू, जैसे आपका म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक्स हो गया, वहां पे भी लोग बोलते हैं कि लोन लेके हम यहाँ इन्वेस्ट कर देंगे? हाँ मतलब Do you recommend? No, I completely don't recommend this. Lot of people take loan and invest into stock market. See, there is thin line of difference between trading and gambling. आपकी इंडस्ट्री में भी ट्रेडर्स और गैम्बलर्स होंगे, ओके? गैम्बलर्स डोंट सर्वाइव फॉर लॉन्ग, ट्रेडर्स ऑलवेज विन। सो ट्रेडर्स लॉन्ग टर्म व्यू रहता है, यू नो, समझते हैं इकोनॉमिक्स को, मैथ्स को समझते हैं, यू नो, वो ऐसा नहीं करेंगे। जो गैम्बलर माइंडसेट से है तो वो किधर भी गैम्बलिंग करेंगे, यू नो, इन्वेस्टमेंट में भी करेंगे, रियल एस्टेट में भी करेंगे, कहीं तो पे और भी इधर करेंगे। एक्चुअल गैम्बलिंग करेंगे। एक्चुअल गैम्बलिंग यू करेंगे। कैन नॉट स्टॉप दैट माइंडसेट, यू नो, इट्स मतलब जो आपका पैसा है नहीं उसको भी आप हाँ। निकाल के वो गैम, इट्स लाइक गैम्बलिंग। ग्रीड और नीड में तो फर्क है, you know, और वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। So, Sachin, so far we have come till here, and अभी कैसा लग रहा है ना कि there are certain things which I have seen and which you may have come across, the real stories. I'll just ask you certain things, and if you Yes. can tell us with examples, like what should be the EMI ratio when you have a certain Yes. income Yes. towards when you're buying a loan. Yes. What should be that, and whether how you can fail and how you cannot. Yes. So because people learn from their mistakes or Yes. someone else's mistake. Yes. तो आप इसके ऊपर थोड़ा बता दो। Ideally, you should have maximum 30% of your income as loan. मतलब 1 लाख है तो As loan EMI. 30,000। हाँ मतलब बस। उतना मैक्सिमम, बिकॉज देखो 60% तो आपके घर खर्चे में जाता है, यू नो, एक्सपेंसेस में जाता है, यू नो, आइडली। देन अगर आपने 30% के ऊपर अगर लोन EMI लोगे तो इन्वेस्टमेंट के लिए कहाँ बचेगा, हाँ, okay. और यू नो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट के लिए कहाँ बचेगा, ओके? मतलब जैसे 1 लाख हो गया तो हम पहले सोचते हैं कि घर खर्चा, बट आप जैसे बता रहे हो कि EMI है लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट भी है, हाँ, मतलब वो इन्वेस्टमेंट के लिए बचेगा ही नहीं पैसा। वैसे ही तो आप यू नो फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉपर कर पाओगे। ये तो बहुत सारे लोग, यू नो, वन ऑफ द थिंग, एक साइकोलॉजिकली आपको एक होम लोन आप बोलते हो, होम लोन बहुत सारे लोग लेते हैं, EMI ज्यादा लेते हैं, और कट टू कट लाइफ होता है, और उस कट टू कट लाइफ के यू नो कारण अगर उनको कोई बैंक वाला भी बोलता है, तो एजेंट बोलता है कि यार वो लाइफ इंश्योरेंस कर ले, बिकॉज आपने अभी होम लोन लिया है ना, वो लाइबिलिटी बढ़ा है, उसके लिए उनके पास पैसा नहीं रहता है, अफोर्डेबिलिटी नहीं रहता है, उतना कट टू कट अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो लोग करते हैं। सो दिस इंपॉर्टेंट थिंग्स गेट लेफ्ट आउट, और इसके कारण अगर कुछ हो जाता है उस बंदे को, तो क्या होता है, बैंक तो इमोशनल नहीं होते हैं, बैंक तो आपका घर कब्जा करेगी। आपने लिया है ड्रीम हाउस, करेक्ट,
लेकिन बैंक कब्जा करेगी ही करेगी जब ईएमआई नहीं पे होगा। नहीं पे होगा, तो आपका जो भी इमोशनल डिसीजन था वो गलत था, ऐसा कोई एग्जांपल हाँ, है मतलब मतलब आपको? आप उतना कंफर्टेबल हो जाओ हाँ, इन ईएमआई में कि आप एक कंसोलिडेटेड डिसीजन ले लो। मतलब आपका 35-40% का ईएमआई अगर आप करते हो तो कंफर्टेबल नहीं रह पाओगे। अच्छा, इसके लिए 30% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। बट बैंक तो दे देता है ना, 50% या 40% तक दे देता है। बैंक दे देता है, आप ले लेते हो, लेकिन अगर वर्स्ट केस सिनेरियो आता है तो आप इनस्टेबल, मतलब आपको कोई खाना दे रहा है रोज, आप खा रहे हो लेकिन आपका हेल्थ खराब होगा। इट इज एज सिंपल एज कोई दैट। कोई है रियल लाइफ में ऐसा मिला है जिसने ये गड़बड़ की है? बहुत सारे लोगों ने गड़बड़ की है, और उसके बाद हम लोग उनका लोन रीशेड्यूलिंग करते हैं, समझते हैं कि गुड लोन कौन सा है, बैड लोन कौन सा है, और वो लोन रीस्ट्रक्चरिंग का प्रोसेस करके बाद में उनको लाइन पर और ट्रैक पर ये लाते हैं। गुड लोन और बैड लोन थोड़ा समझ में नहीं आया। कि अगर आपने होम लोन लिया है, ओके, आई वुड कंसिडर इट एज अ गुड लोन। गुड लोन, अच्छा, मतलब उसमें एसेट क्रिएट हो रहा है। हाँ, अगर आपने पर्सनल लोन लिया है तो हम्म, वो बैड लोन है। मतलब किसके लिए लिया है, शादी के लिए लिया है या फिर? शादी के लिए भी लिया हो तो तो भी भी bad बैड loan लोन है। है, अच्छा। बिकॉज अगर आपके पास पैसा नहीं है उतना तो क्यों आप शो अपना मारना है? अपना खर्चा क्यों कर रहे हो? क्यों करना है? क्यों करना है लोन लेके, क्यों करना है? बिकॉज इट्स अ बैड डिसीजन। इट माइट बी अ वांट ऑफ योर्स बट दैट्स नॉट अ नीड। शादी करने के लिए क्या चाहिए होता है? तो आप मतलब खर्चा कम कर लो, पर्सनल लोन कम कर लो। नीड्स क्रेडिट और कार्ड? क्रेडिट कार्ड तो वांट ही है। क्रेडिट कार्ड क्यों यूज करता है मेरे को मालूम नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ क्रेडिट कार्ड यू नो है आपके पास तो सीजन ले लो, काट के फेंक दो। तो एक बंदा है जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, 1600 कुछ क्रेडिट कार्ड है उसमें, हाँ, एंड नो डेब्ट। हाँ, एक तो उसने कैसे किया होगा? basically he is famous for some infamous thing. That is an example of what not to be. बट इसका है मे बी उसने शायद उसको ही मस्ट लर्न द आर्ट ऑफ यूजिंग इट, बट जनरली पीपल डोंट लर्न द आर्ट ऑफ यूजिंग क्रेडिट कार्ड। नहीं होता है। नहीं होता है, मिस हो जाता है, फिर आप क्रेडिट कार्ड किसके लिए स्पेंड करते हो? आप एनालाइज कर लो। मोस्ट ऑफ द पीपल स्पेंड क्रेडिट कार्ड ऑन थिंग्स लाइक शॉपिंग, इंटरनेशनल अनवांटेड थिंग्स। अनवांटेड थिंग। इंटरनेशनल ट्रेवल में जाते हो तो वहां पर आपका खर्चा होता है, रेस्टोरेंट्स पे खर्चा होता है। आप कहाँ पर खर्चा करते हो? तो डू यू आल्सो रिकमेंड क्रेडिट कार्ड्स इफ इट इज अ वाइजली यूज्ड? वो वाइजली यूज नहीं होता है। हाँ, मतलब जनरली जो इंसान वो उसको वाइजली यूज नहीं कर सकता, उसे हाँ। नहीं करना चाहिए, और जो कर सकता है वाइजली तो शायद कर ले। आपको बैंक सबसे ज्यादा ऑफर, पॉइंट्स, रिवॉर्ड्स क्रेडिट कार्ड पर देते हैं। क्यों? आप लोन भी लेते हो ना, लोन पर कभी आपको रिवॉर्ड मिलता है? नहीं, नहीं, पॉइंट्स मिलते हैं? नहीं। क्रेडिट कार्ड पे क्यों मिलता है? बिकॉज सबको मालूम है, बैंक को साइकोलॉजी मालूम है कि क्रेडिट कार्ड लेके तो आज नहीं तो कल डूबेगा, और तब हम लोग आपसे कमाएंगे। सो दैट इज द कैरेट दैट इज डैंगल्ड फॉर यू टू गेट लूर्ड इनटू इट. True. No So one can actually. if you are not disciplined, then ideally you should not. If you are disciplined, then obviously. अगर आप डिसिप्लिन भी होते हो ना तो डिसिप्लिन, कंटिन्यूस डिसिप्लिन होना बहुत डिफिकल्ट है। क्रेडिट कार्ड लोगे तो आज नहीं तो कल फेल हो जाओगे। मतलब आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू शुड बी अवे फ्रॉम क्रेडिट कार्ड। Yeah, so basically use your own money, not the future money which you are not yours. Absolutely. ठीक है, तो मतलब जब स्टॉक्स कोई लेता है और म्यूचुअल फंड्स कोई लेता है और रियल एस्टेट पकड़ लो, तो हैव यू सीन समवन लाइक दैट हुज स्टॉक्स हैज आउट परफॉर्म्ड रियल एस्टेट, या रियल एस्टेट में उसको ज्यादा इनकम मिला है म्यूचुअल फंड से या स्टॉक से? सी रियल एस्टेट सब एग्जांपल्स है। लॉन्ग रन आप पोर्टफोलियो देखोगे तो पिछले 10 साल का देखोगे, आप 10-12 साल का देखोगे तो स्टॉक हैज आउट परफॉर्म मोस्ट ऑफ द एसेट क्लास इन इंडिया। ओके, ये तो फैक्ट है। पिछले 4-5 साल से तो ज्यादा ही बढ़ा है। यस, लेकिन अगर आप एट माइक्रो एनालिसिस सम सिचुएशंस आपको दिख जाएगा जहां पर रियल एस्टेट हैज आउट परफॉर्म इवन स्टॉक। राइट, होता है, अगर पर स्पेशली प्लॉट में होता है। ओके। ये अगर आप स्टैंडर्ड अपार्टमेंट को देखोगे तो कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर बाय करते हो तो ये डेटा म्यूचुअल फंड के फेवर में होगा, नहीं तो स्टॉक के फेवर में होगा। लेकिन अगर आप लैंड लेते हो, यू विल फाइंड दैट देयर आर यूज केसेस वेयर इन लैंड हैज गिवन रिटर्न्स व्हिच आर 500%, 600%, 700% आल्सो, और जहां पर स्टॉक वगैरह आपको मैक्सिमम 200-300% का रिटर्न। So basically you recommend plot if you are looking at a long term horizon and better returns. Yes. ऐसा कोई मिला है जो प्लॉट लेके फंस गया है? हाँ, मतलब ड्यू डिलिजेंस नहीं प्रॉपर हुआ है तो फंस गया है।
कोई मिला है आपको ऐसा जो है, मिलते हैं क्लाइंट, क्लाइंट बोलते हैं कि मेरा एक फंसा हुआ है, जल्दी से जल्दी मैं उसको लिक्विडेट करूंगा और फिर पैसा। लेकिन लिक्विडेट कैसे करेंगे अगर क्लियर नहीं हाँ, है? ड्यू डिलिजेंस ठीक नहीं हुआ है, प्रॉब्लम है। नहीं तो सिचुएशनली भी देखना पड़ेगा, मतलब एक प्लॉट का सिचुएशन है जहां पर उसने प्लॉट खरीदा है और थोड़े दिन के बाद वहां से ऊपर से हाई टेंशन वायर गए। तो अगर मैं आपको एक ब्लंटली सवाल पूछूं कि हाँ। आपकी कितनी प्रॉपर्टीज है, आपकी कितनी एफडीज है, आपकी कितनी म्यूचुअल फंड है या स्टॉक है, लेट्स स्टिक टू प्रॉपर्टीज, आप बिलीव करते हो प्रॉपर्टीज में कितनी Yes. है? हाँ, प्रॉपर्टीज तो है, मैंने 2 कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं जहां से मेरे को रेंटल इनकम आता है, दिया। और 3 मेरे रेजिडेंशियल। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और एक प्लॉट भी है। Oh. प्लॉट इज समथिंग दैट आई एम थिंकिंग लॉन्ग टर्म। तो आप प्लॉट पे जाते हो अपने? हाँ, जाता हूँ रेगुलरली। कैसा लगता है? फीलिंग अच्छा आता है कि देखा है कि है साइड में कुछ तो हो रहा है, बिकॉज़ दिस इज अ प्लेस वेयर आई टेकन वेयर देयर वाज नथिंग। ओके, गेटेड कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी में एक Plot प्लॉट है, लिया था। लेकिन अभी जहां पर जब मैं जाके देखता हूँ फिर 1-2-3 विलास वहां पर आए हैं, बंगलेज वहां कुछ पर अच्छा आए हैं, तो दिखता फील है, अच्छा आता फील है। अच्छा आता है। यस, तो बेसिकली प्लॉट लेने के बाद अगर आप उस पर कुछ भी नहीं बनाया तो भी सराउंडिंग में जो हो रहा है उसको देख के आपको थोड़ा अच्छा लगने यस, लगता है। यस, So यस। प्रॉपर्टी गिव्स यू दैट, दैट्स और स्माइल ऑन योर फेस वो जो आल्सो। फीलिंग हैप्पीनेस आता है ना, वो अलग लेवल का है। हाँ। सिर्फ प्रॉपर्टी, मैं फाइनेंशियल के बारे में बात कर रहा हूँ अभी, कैलकुलेशंस के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन बाय डिफॉल्ट समटाइम्स वो जो इनबॉर्न कंडीशनिंग है ना हमारे इंडियंस का प्रॉपर्टी के लिए, वो एक्टिवेट भी जाता है। तो आपने इतना सब बोल दिया कि ईएमआई इतना होना चाहिए, आपका ईएमआई 30% के ऊपर है, 30% के नहीं, आई नीचे है? कंट्रोल माय ईएमआई, अभी तो मेरा ईएमआई 30% के नीचे है, इनफैक्ट इट इज लेसर देन 25%। So at you are enjoying the properties and the plot, and when I talk about yes, plot, yes. आपका जो फेस है जो ऐसा ग्लो कर रहा है, हाँ. वो आप जो है जैसे you are so happy when you are talking Yes, about the yes, property, yes. and the emotion just comes out when Yes. we see it's like a baby. अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। प्लॉट का फीलिंग अलग है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, प्लॉट का फीलिंग ही अलग है। स्पेशली आप देख रहे हो कि इन एंड अराउंड ग्रोथ हो रहा है, तो आपको सबकॉन्शियसली मालूम है कि प्राइस भी बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है। और ग्रोथ ऑलवेज ट्रिगर्स योर हैप्पीनेस। या बाय डिफॉल्ट ग्रोथ के बारे में सोचते हो तो अच्छा लगता है। जब हम कोई म्यूचुअल फंड में डालते हैं पैसा या फिर प्रॉपर्टी में डालते हैं, जब हम वहां पे हमने तो इन्वेस्ट किया था 1 लाख रुपया, हाँ। जब हम वहां देखते हैं कि 1,20,000 हो गया, हम्म, जो हमने कुछ किया ही नहीं है। हाँ। हमने तो बस 1 लाख डाला था, वो 1,20,000 हो गया, कोई कुछ किया करके। यस, यस, हाँ, बट हमें अच्छा लगता है कि इसमें हमारी मेहनत नहीं है, Yes, yes. हमारा तो बेसिक पैसा लगा है। राइट। तो इनफैक्ट इवन रियल एस्टेट में भी अगर 1 करोड़ में प्रॉपर्टी ली है, हाँ। 1 साल के बाद वो 1,20,00,000 की हो गई, तो वो 20 लाख हमारा इनकम है, तो वो देख के मजा आता है। ऑफकोर्स बिल्डअप में तो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, Right, उसको right. मेंटेन करना पड़ता है, मेंटेनेंस पे करना पड़ता है, right. क्लीन रखना पड़ता है, Right. रेंटल देना पड़ता है, नहीं Right. तो कुछ फायदा नहीं। राइट, नहीं तो आपका इंटरेस्ट चला गया, आपका आरओआई नहीं आएगा। Hmm. बट दैट फीलिंग इज डिफरेंट व्हेन यू सी द ग्रोथ। Absolutely, I agree with you. This, I just that energy when you're talking about growth, that energy just passes Yes. on. We just rub the Yes. energy, Yes. basically, both Yes, ways. yes, absolutely, absolutely. Coming to the most important part, wherein people don't secure their properties or they don't secure the loan. Yes, So yes. what do you see here? मतलब कैसा लगता है कि लोग मतलब प्रॉपर्टी ले लिया, कोई और कुछ ले लिया, फिर अपना खुद का लायबिलिटी इतना बढ़ा देते हैं कि अगर कल कुछ हो गया तो ये कौन भरेगा पैसा? बहुत बुरा लगता है, हम्म, to be very honest with you. I'll give you an example. I had a client, केरला में जो फ्लड हुआ था, हाँ, you know, लैंडस्लाइड। टेनारा एक क्लाइंट था, बहुत अच्छा विला बंगलो फैमिली के लिए किया था। he is from Dubai, so he had even brought some nice paintings to decorate his house. अच्छा। उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा, 25-30 हजार के पेंटिंग्स होंगे। एंड दिस इज अ लाइव एग्जांपल ना, हाँ। people will decorate their houses, Yeah. their walls with 25,000 paintings, Correct, but they will correct. not buy a home insurance that will cost them 10 to 12,000 rupees per annum. वो अवेयरनेस नहीं है। वो बहुत बुरा लगता है, हम्म, बिकॉज साइकोलॉजिकल क्या है ना कि पेड़ गिरेगा लेकिन मेरे घर पे नहीं, नेबर के घर पे। किसी का, सिलेंडर फटेगा मेरा नहीं, घर नेबर किसी का। और का। सो ये साइकोलॉजी है, मेरे को कुछ बुरा नहीं होगा, दैट इज समथिंग दैट वी ऑलवेज वांट टू बिलीव। एंड इंडियंस आर वेरी पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, ये सब में ना बहुत है, तो हाँ। वो शुभ शुभ
बात अरे करो ऐसे मत तो करो, आप इंश्योरेंस मतलब मेरे घर को yes, क्या होगा, yes, yes, मुझे क्या होगा, थोड़ा yes, छुप छुप बोलो yes. ऐसा। So probably उसके कारण ना ये there is a taboo kind of thing, ये बात नहीं हो पाती ओपनली, डिस्कशन नहीं होता है। आई थिंक आज मैं सबको बोलना चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट के थ्रू, some tough financial decisions, tough financial risks that are involved, start talking with your family, because until unless you don't talk, उसका प्रोटेक्शन टेबल पर नहीं आएगा टू डिसाइड, मतलब वो दैट टॉपिक हैज टू बी ऑन योर टेबल टू लेकिन डिसाइड। ये तो आपका धंधा है ना, म्यूचुअल हाँ। फंड बेचना, लाइफ इंश्योरेंस बेचना, हम्म। तो आप तो बोलोगे ही ना कि ये मेरा कर धंधा लो। एडवाइस है, मेरा धंधा म्यूचुअल फंड बेचना नहीं है, मेरा धंधा इंश्योरेंस बेचना नहीं है, मेरा धंधा एडवाइस देना है। आई और इस पर मैं ठाम रहता हूँ। और एडवाइस इज समथिंग दैट कैन चेंज पीपल्स लाइफ। मैं अगर म्यूचुअल फंड देता हूँ, म्यूचुअल फंड माइट नॉट चेंज पीपल्स लाइफ, लेकिन मैं एक राइट एडवाइस देकर म्यूचुअल फंड उनको देता हूँ उनके पोर्टफोलियो में, दैट विल चेंज पीपल्स लाइफ। हाँ, वो प्रोडक्ट जरूरी नहीं है, आप क्या कंसल्टेंसी दे रहे हो जरूरी है। Absolutely. लोग तो अपना आईफोन भी कवर करते हैं, हाँ। अपनी इंश्योरेंस, कार तो इंश्योरेंस हाँ। करते ही है, हाँ। बट मोबाइल जब वो को cover भी डालते घर, हैं। हाँ, तो घर का जो पार्ट आता है, रियल एस्टेट का पार्ट आता है, तब वो इंश्योरेंस नहीं करते। मोबाइल लेते हैं लोन पर, ईएमआई पर, हाँ। 1.5 लाख का फोन लेते हैं ईएमआई पर, ओके, और लेकर इंस्टाग्राम पर फ्लॉन्ट भी करते हैं। लेकिन वही बंदा जिसके बीवी है, 2 बच्चे हैं, वो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेता, एक 20-25,000 रुपीज का। दैट्स द फैक्ट। That's the fact. ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ईएमआई पर आईफोन लिया है, लेकिन एक 30,000 का इंश्योरेंस नहीं लिया है फॉर हेल्थ कवरेज। ये होता ही ये है। होता है। तो बेसिकली अगर आप देखा जाए तो वी लिव इन अ सिचुएशन वेरिन हमें झूठ अच्छा लगता है हाँ। कि चल क्या होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम सचिन के पास जाते हैं और सचिन हमें दिखाता है गोल सेटिंग्स कि लाइफ में आपके ये चीज़ें हैं, ये अगर आप करोगे तो आपका शायद वो परफेक्ट ना हो, लेकिन आपको बचाएगा बीच में। अगर कुछ गलत हो गया तो एटलीस्ट इट विल गिव यू सम सपोर्ट। तो मुझे तो लगता है कि फाइनेंशियल एडवाइजरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ इट कम्स फ्रॉम अ technology firm like yours, from Fidarji and Be Smart, it is going to be amazing for them. So जैसे we spoke about the real example, so you think that government should also come out with policies wherein they make mandatory, like हमारे पास कार इंश्योरेंस होता है, मैंडेटरी है। आपने गाड़ी जैसे बाहर निकाली तो आपका इंश्योरेंस होना चाहिए, थर्ड पार्टी तो कम से कम होना चाहिए, एंड नॉन डैमेज। तो ऐसे प्रॉपर्टी में इंश्योरेंस मैंडेटरी करना चाहिए, आपको लगता है? अब करना ही चाहिए, बिकॉज लॉस होता है तो वो उस बंदे ने इतने सालों से पैसा जमा करके एक प्रॉपर्टी खरीदी, मतलब एक घर कंस्ट्रक्ट किया है, उस घर को बिल्ड किया है, उसमें रह रहा है। आप उसका सिर्फ प्रॉपर्टी लॉस नहीं हो रहा है, उसकी पूरी जिंदगी का जो टाइम उसने लगाया है कमाने में, वो टाइम भी जाता है। आप उस एंगल से सोचोगे तो इट इज अ नेशनल लॉस, इफ यू आस्क मी। अच्छा, इट इज अ ये नेशनल लॉस। नेशनल लॉस वाला ना मेरे को हाँ। और एक जगह पे याद आया था, जिसमें अगर रोड अगर ठीक नहीं है और हाँ। गाड़ियां चल रही है, हाँ। तो गाड़ी का टायर, गाड़ी का Yes. सस्पेंशन, उसका जो माइलेज, सब ये नेशनल लॉस ही तो है। एब्सोल्युटली। हाउ कैन वी एक्चुअली, अभी जैसे गडकरी साहब ने जो पॉलिसी निकाला है फॉर scrapping the car, reusing, recycling the old cars, and helping the industry to use the recycled material. I think ये बहुत अच्छी चीज है, मतलब वेस्टेज तो नहीं हो रहा है कुछ ना कुछ। अगर हम लोग वही एंगल से सोचते हैं, देन आई थिंक वेस्टेज कम होगा। मतलब व्हाई टू ओनली लुक एट रिसाइकलिंग ओनली द फिजिकल एसेट्स, रिसाइकल आल्सो द एफर्ट्स। जैसे मैंने Yeah. बोला है कि जो बंदे का इतने साल का इनकम, मेहनत, टाइम इन्वॉल्व हुआ है कुछ एसेट बनाने में, और इंश्योरेंस नहीं होने के कारण अगर उसका लॉस हो जाता है तो इट इज एक्चुअली लॉस। ऐसा कोई एग्जांपल है जिसमें आपने देखा होगा कि बंदे के 50 लाख चले गए, 1 करोड़ चला गया कोई हेल्थ चीज की वजह से, जिसमें वो सेविंग्स में से उसे निकालना पड़ा? ओह यस यस यस, कोविड के टाइम पे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल में। ओके, एंड कोइंसिडेंटली a real estate person whom I knew, okay, from Mumbai, very very Okay. big developer. We were connected with some insurance business. बंदे ने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं किया था। Okay, I had actually told him that he need to have an health वो तो insurance. बेसिक है। हाँ,
लेकिन वो बोला आई एम फिट एंड फाइन, देख लेंगे, डिले हो गया, बिजी हो गया, नहीं डिसीजन लिया। कोविड के टाइम पर ही एंड हिज एंटायर फैमिली वाज नॉट वेल, एंड टोटल money that they spent during that time only on the health part was more than 40 lakh rupees. And Okay. real estate during COVID, you know how bad it was. Yeah. Because there was no liquidity. इसका लिक्विडिटी भी चला गया इन हेल्थ हेल्थ एक्सपेंसेस। और उसके बाद रियल एस्टेट इंडस्ट्री 2-3 साल तक प्रॉब्लम में था। यू अंडरस्टैंड दी प्रॉब्लम। वो जो पीछे आया ना बंदा, उसको आगे जाने में बहुत 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 तकलीफ हुई। Fortunately, he's bounced back. Okay, I'm very happy for him. But he came back at least 4-5 years in his life just for that one decision that he has not taken. मतलब बहुत फर्क पड़ता है, 40-50 लाख आपके हाँ, चले गए, वो हाँ। उसको वापस कमाओ। That's एंड right. इसे सेटबैक ना, क्योंकि आप अगर वो 5 लाख भी रहेंगे तो भी वो माइनस में चले जाते हैं। Absolutely. सो इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी इट वाज इररिलेवेंट। Absolutely. वो जरूरत ही नहीं थी कि वो आपके पैसे जाए। Hmm. तो अगर हम लोग, किसी ने मुझे कहा था कि अगर आपको 1 करोड़ का असेट करना है तो पहले तो उसको बचाओ। Hmm. अगर आप इंश्योरेंस करते हो 15 लाख 20 लाख जो आपका कवर है, हम्म। अगर कोई कैलेमिटी हुई या हम्म। कोई कुछ हुआ हम्म। तो 15 लाख आपके बच गए हैं। Hmm. तो इट्स लाइक क्रिएटिंग ओनली, Absolutely. तो आपके जेब में से चले जाएंगे। Absolutely. So people don't take it, kind of they don't consider insurance as expense. मैं हर बंदे को Sorry, बोलता हूँ, they don't consider insurance as mandatory. They consider insurance as expense. कि यार ये तो खर्चा आ गया। yes, मैं हर बंदे को बोलता हूँ। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे पास 20 लाख रुपया है इन्वेस्ट करने के लिए। मैं पहले उनको पूछता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस है? इतना है। अगर वो बोलते हैं नहीं है, तो मैं उनको बोलता हूँ इस 20 लाख में से ना एक 30-40,000 निकालो हेल्थ इंश्योरेंस। पहले हेल्थ इंश्योरेंस। हाँ, समझो कि आपके 19,60,000 इन्वेस्ट हुए हैं, नॉट 20 लाख, बिकॉज एक साल के अंदर वो 20 लाख के ऊपर हो जाएंगे पैसे। हो जाएंगे। लेकिन अगर कल कुछ हो जाता है तो वो 20 लाख बचेंगे। 20 लाख बचेंगे। मनी सेव्ड इज मनी अर्न। यस, ऐसा ही होता मनी है। प्रोटेक्टेड, मनी इज प्रोटेक्टेड। मनी प्रोटेक्टेड इज मनी ग्रोन। आज के सिनेरियो में आप देखोगे तो मनी दैट इज प्रोटेक्टेड विल ग्रो। आज की तारीख में एक हेल्थ इंश्योरेंस एक जनरली एक फैमिली को कितना होना चाहिए? 15-20 लाख? मैं एक सिंपल फॉर्मूला, एक्चुअली आज के डेट में डिपेंडिंग, अगर आपका इनकम 1 लाख के ऊपर हो देन मिनिमम 15 लाख का सम इंश्योर चाहिए ही चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस। बिकॉज आप 1 लाख कमा रहे हो, आपका लाइफस्टाइल एक लेवल पर सेट है, तो यू विल डेफिनेटली गो टू गुड हॉस्पिटल्स, करेक्ट। एंड आपके बाद आपकी फैमिली भी है। तो अगर कोई भी फैमिली मेंबर अगर एडमिट होता है हॉस्पिटल में, उसकी फैमिली भी अटैच होती है, दे विल हैव टू हैव दैट कंफर्ट टू टेक केयर ऑफ दैट पर्सन। सो मिनिमम 15 लाख तो चाहिए। एनीवन्स इनकम ओवर 1 लाख, जिसका इनकम 4-5 लाख के अराउंड हो, उनको मैं रिकमेंड करता हूँ मिनिमम 1 करोड़, बिकॉज देन दे डिजर्व द बेस्ट ट्रीटमेंट। आपने लोगों को लाइफ इंश्योरेंस बेच के प्रीमियम लेके उसका इन्वेस्टमेंट करके लाइफ इंश्योरेंस में लोगों को फंसाया। प्रीमियम इंश्योरेंस में, हेल्थ इंश्योरेंस में छोटा अमाउंट लेके छोटा कवरेज दे दिया। हाँ। प्रॉपर्टी का कोई उसका इंश्योरेंस नहीं किया। हाँ। तो ये सारी चीजें आप उसको कैसे देखते हो? लाइक हाउ विल यू डू इट बेटर हाँ। थ्रू योर एजेंट्स? सी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोग एज एन एडवाइजर लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए बेचते हैं। आई एम वेरी क्लियर दैट इंश्योरेंस, जो वर्ड ही है ना इंश्योरेंस, इट इज प्रोटेक्शन। हाँ। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट मिक्स करते ही नहीं है। और हमारा टेक्नोलॉजी भी ऐसे बिल्ड हुआ है कि इट इज वेरी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट दैट इंश्योरेंस इज प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन। हम लोग इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट बोल के बेचते ही नहीं। ओके, और ये मैं सबको एडवाइस करूंगा, क्लाइंट को एडवाइस करूंगा, कोई आपको इंश्योरेंस बेच रहा है कि इन्वेस्टमेंट है तो मत लेना, बिकॉज इंश्योरेंस सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए यूज करना, नॉट एज एन इन्वेस्टमेंट। कभी कोई आया है जिसने बोला है सचिन आपने तो ये बहुत गंदा प्रोडक्ट दे दिया मुझे? अभी तक तो नहीं। बहुत से लोग आए हैं जिन्होंने बोला है कि थैंक यू, आपने हमारा लाइफ सेट कर दिया। अच्छा। ऐसे लोग बहुत आए हैं। कितने सारे एजेंट्स हैं जो आपसे कनेक्टेड है? फिनर्जी के अराउंड 460 के ऊपर सब्सक्राइबर्स है। 460। तो ये जब एजेंट्स आते हैं इस प्लेटफॉर्म पे तो उन्हें क्या क्या मिलता है? In a nutshell, MyFinergy will help a normal distributor to become the financial doctor of their clients. ओके। ओके, जैसे एक फैमिली डॉक्टर होता है फैमिली को,
बुखार आया, जुकाम आया, तो फर्स्ट थिंग दे कॉल दे आर डॉक्टर्स. डॉक्टर या सिमिलरली अगर कुछ भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, Finergy advisors को we want to make them as the family financial doctor of their client, and that is our mission. Basically, we want to promote, or we want to stop the topic of product selling, और इन लोग प्रोडक्ट के बारे में कोई बात नहीं करना चाहिए, and the thing has to shift from product selling to goal selling. It has to be aspiration of the client that has to be the first and the foremost important thing for financial advisors. मतलब ये कितना अच्छा होगा ना, बिकॉज सी फाइनेंशियल हेल्थ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. Absolutely. हमारी खुद की हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ में Yes. आप जैसे कहा डॉक्टर, मेरे को बहुत अच्छा लगा Yes. कि डॉक्टर को फ़ोन करते वैसे ऐसे सचिन या फिर सचिन के कोई माई फिनर्जी के कोई एजेंट को Yes. फ़ोन किया, यार मेरे को ये प्रॉब्लम है, Yes. या फिर मेरे पास इतना अबंडेंस में पैसा आया है, हाँ. इसको क्या करूँ, Right. या फिर मेरी स्कैर्सिटी हो रही है, मैं कहाँ से कहाँ पैसे निकाल के Yes. कहाँ Yes. उसको इन्वेस्ट करूँ, कहाँ कैसे यूज़ करूँ. Yes. तो ये मतलब बहुत ज़रूरी है. और आपका ऐप शायद मैंने देखा है उसका इंटरफेस, वो बहुत इजी लग रहा Yes. था, बिकॉज मोस्टली जो CRM होते हैं बहुत बकवास होते हैं. Yes, yes. मतलब इतना बेकार होता है कि आप उसमें जाओ, आप जो आपने शुरुआत की थी Yes. और जो आप ढूंढ रहे हो आप Yes. कहीं और चले जाओगे. Yes, yes, तो मैंने yes. आपका इंटरफेस देखा था CRM का, सो इट वाज लुकिंग नाइस. जो ऐप का जो देखा था मैंने उसमें डिटेल था, मतलब Yes, वहाँ पे टैप yes. करो तो आप कहीं और चले जाओगे Yes, जो yes. आपको चाहिए. Yes. सो बेसिकली हम लोग ने क्या किया है ना, हम लोग ने डम डाउन वर्जन बनाया है. अच्छा. मतलब जो डम डाउन मतलब अरे वाह, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, बहुत कुछ अप्रूव भी हो गया. उसके बाद हम लोग ने उसका डम डाउन वर्जन बनाया है. अच्छा. जो डमस्ट पर्सन इन द रूम कैन अंडरस्टैंड, वो वर्जन हम लोगों ने लॉन्च किया. बनाया तो फॉर द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन व्हेन वी स्टार्टेड, Correct, बट correct. जब हम लोग ने लॉन्च किया, हम लोग ने एक रूल बनाया कि वी विल ओनली लॉन्च द डम डाउन वर्जन ऑफ आवर एप्लीकेशन. ये बहुत अच्छी चीज कही आपने, डम डाउन. मतलब Yes. जो सब जिसको आता नहीं है एकदम बहुत 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 Yes. मतलब लेमैन है और Yes. कुछ नहीं आता है उसे. Yes, इवन yes. वो चला गया उस इंटरफेस पे तो उसे Yes. भी इजी होना चाहिए. तो Exactly. फॉर समवन हु इज इंटेलिजेंट, फॉर देम इट विल बी क्विकर, Yes. एंड समवन हु इज नॉट, Yes. फॉर हिम इट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड. एब्सोल्युटली. अगर आप इस पर ह्यूमन साइकोलॉजी को समझोगे ना, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है. हम लोगों ने मशीन बनाई हैंड का काम कम करने के लिए, मेहनत कम करने के लिए. कंप्यूटर बनाया जो फाइलिंग, विलिंग, डेटा मैनेजमेंट, वो काम कम करने के लिए. एप्लीकेशन जो बना रहा है, व्हाट शुड बी द पर्पस ऑफ एप्लीकेशन? टू मेक यू लेस ब्रेनी. हाँ. अगर हम लोग ने एप्लीकेशन में ज्यादा इंटेलिजेंस घुसेड़ दिया, हाँ. देन एप्लीकेशन का कुछ फायदा नहीं. हाँ. एप्लीकेशन हैज टू बी अ रिप्लेसमेंट फॉर योर ब्रेन. मतलब आपको लेवरेज मिलना चाहिए, नहीं तो हाँ. क्या फायदा है. जितना इजी बनाओगे ना टेक्नोलॉजी उतना ही एडॉप्ट होगा. टेक्नोलॉजी को आप अगर इंटेलिजेंट बनाओगे तो एडॉप्शन नहीं होगा. सारे लोग यूज नहीं करेंगे. नहीं, मतलब पर्पस ही टेक्नोलॉजी का अभी जो इवॉल्व हुआ है ना, इट इज बेसिकली टू रिप्लेस योर ब्रेन. लाइक हाउ मशीन्स रिप्लेस योर हैंड्स, टेक्नोलॉजी इज बेसिकली टू रिप्लेस योर ब्रेन. सो दैट इज द मोटिव, एंड उसी मोटिव को रख के, वही कंज्यूमर बिहेवियर को समझकर हम लोग ने डम डाउन वर्जन निकाला है. तो ये सारे एजेंट, ये जो कंसल्टेंट है आपके माई फिनर्जी में, इनका कोई ट्रेनिंग वगैरह होता है? यू ऑल कंडक्ट? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन. बिकॉज जैसे आपने पहले भी पूछा था कि उनको एक प्लेटफॉर्म पर एक यूनिफॉर्मिटी कैसे लाएं. बहुत सारे एडवाइजर बहुत सारे डिफरेंट क्वालिफिकेशंस बैकग्राउंड से आते हैं. सो हम लोग ने 10 वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग्स रखे हैं एज पार्ट ऑफ द ऑनबोर्डिंग. सो अलॉन्ग विद द टेक्नोलॉजी देयर आर 10 वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स दैट आर पार्ट ऑफ देयर ऑनबोर्डिंग जर्नी. हमारा जब एडवाइजर ऑनबोर्ड होता है, सब्सक्रिप्शन लेता है, तो पहले 30 दिन में देयर इज अ सेट ऑफ कोर्स, बेसिक कोर्स समझते हैं, टेक्नोलॉजी समझाते हैं, फंडामेंटल समझाते हैं. उसके बाद एक 60 दिन का नेक्स्ट 30 डेज का एक ऑनबोर्डिंग प्रोसेस रहता है, एंड दैट प्रोसेस गोज अप टू 6 मंथ्स. उसके बाद इन 6 मंथ्स देयर आर 1-to-1 रिव्यूज. हम लोग फाउंडर के साथ उनका रिव्यू रखते हैं. सो वी एंड देखते हैं कि वो लोग ने क्या प्रोग्रेस किया है, कहाँ पर अटक रहे हैं, टेक्नोलॉजी पर अटक रहे हैं कि टेक्निकल चीजों पर अटक रहे हैं एज फार एज द प्रोडक्ट इज कंसर्न. आगे जाके तो AI सारा गेम मतलब डिस्टर्ब करने वाला है. तो फॉर इन दैट केस हाउ डू यू सी AI एज अ चैलेंज, और डू यू सी इट एज अ चैलेंज? AI इज अ फैसिलिटेटर, इट इज नॉट अ चैलेंज. AI आपको मदद करेगा टू सेव योर टाइम. जो भी AI कर रहा है आज ह्यूमन ब्रेन्स कर सकता है और कर रहा था,
It is just doing it faster. Faster. Everything, is programmed as per human brains only. But one thing that AI will not be able to replace is emotional value of a human being. आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे रियल एस्टेट खरीदने के लिए. वो जो इमोशनल फैक्टर है, जिस फैक्टर पे बहुत बार आप उनको कन्विंस करते हो कि मेरे को लग रहा है कि ये फैक्टर है, देखो, मालूम है कि बीच पर वॉक करने से एक सुकून मिलता है. ओके. और वो सुकून आप खुद एडवाइजर के चेहरे पर देख सकते हो एज अ रियल एस्टेट. सो आपको समझ में आता है कि क्या कनेक्शन है वो प्रॉपर्टी फॉर दैट लोकेशन और एंड दैट इमोशन ऑफ द क्लाइंट. वो एआई कहाँ से वो देखेगा? एआई नहीं समझा पाया क्योंकि वो एजेंट वहां पे वॉक कर चुका है. वो सेम कन्विक्शन पास ऑन होती है Right. क्लाइंट्स पे, और क्लाइंट को वो बता सकता है कि यहाँ पे कितना सुकून मिलेगा. एब्सोल्युटली. और उनके इमोशनल जो वैल्यूज है, सिस्टम्स है, वो तो एक सिर्फ कस्टमर ही, वो तो एक एडवाइजर रियल पर्सन ही समझ सकता है. मैं आपको एक सिंपल बात बोलता हूँ. ड्यूरिंग कोविड टाइम लॉट ऑफ पीपल पैनिक्ड एंड विथड्रू देयर म्यूचुअल फंड. Maximum people who withdrew, they were direct investors, not through an advisor. ओके. ऐसा क्यों? लेकिन थोड़ा जिनके पास एडवाइजर था, उन्होंने वो पैनिक होके सेल नहीं किया, वो रुके इन्वेस्टेड. और अगर आप ग्रोथ देखोगे, व्हेन 22 मार्च 23 मार्च में आप अगर आप देखोगे कि क्या स्टॉक मार्केट था, 23,000 सेंसेक्स गया था, और आज देखो कहाँ पर 80,000 के ऊपर है. You just see the growth People that who has happened. waited, they Yes. held on to the Yes, investment. yes. और वो इमोशनल सपोर्ट किसने दिया? एजेंट. अगर आप उस टाइम एआई को पूछते तो एआई क्या बोलता था? सेल इट ऑफ. आई थिंक ये वो तो difference टेक्निकल समझना पे चला पड़ेगा. जाता था, लेकिन Yes. एक जो एजेंट है उसमें एक भी है. तो एजेंट जब आपको बोलता है कि यार पैसे रखो, तो उसमें उसका भी फायदा होता है ना. हाँ, फायदा सी अर्थशास्त्र है. Transactions where both parties benefit is अर्थशास्त्र. That's the most important thing of अर्थशास्त्र. तो that is by default. वो मोटिवेशन ही नहीं आएगा कि राइट एडवाइस देने का है कि नहीं. लेकिन अगर इंटेंशन लॉन्ग टर्म है एडवाइजर का कि मेरे को क्लाइंट का इंटरेस्ट देखना है एंड दैट इज माय जॉब, तो फिर क्योंकि फायदा का होना चाहिए. क्लाइंट तो कभी पैनिक होके कोई भी रॉन्ग डिसीजन ले सकता है, लेकिन एक एजेंट जब बाहर से देखता है तो उसे मिस्टेक दिखती है, वो उसको संभाल सकता है. सो एआई बेसिकली इनफैक्ट इस पर मैं एक अच्छा एग्जांपल लेता हूँ प्रसाद. हमारे माइथोलॉजी में अगर आप देखोगे पांडव और कौरव महाभारत जो हुआ है, कौरव्स वर मोर पावरफुल. दे हैड द मोस्ट जब बोलते हैं मोस्ट टैलेंटेड वॉरियर्स विद देम. सब लोग द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, सब लोग उधर थे. और वो जब दुर्योधन जाता है कृष्णा के पास टू बी ऑन हिज साइड, तो वो पूरा नारायणी सेना उसको देता है अब तक, द मोस्ट बिगेस्ट आर्मी दैट वाज गिवन टू हिम. उसके बाद भी वॉर कौन जीता? पांडव. क्यों? उनके पास एक एडवाइजर था. राइट इमोशंस जब उन्होंने अर्जुन ने डाल दिए थे शस्त्र. तो अब आप हमें बताओ कि कोई होम बायर है तो उसको आप क्या सलाह दोगे? देखो, एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट ही इज गोइंग एंड ही इज पिचिंग अ प्रोडक्ट और एक प्रॉपर्टी दिखा रहा है, फिर वो खरीदने के लिए रेडी है. लेकिन एज अ एडवाइजर, लाइक वेल्थ क्रिएशन हो या फाइनेंशियल एडवाइजर हो, व्हाट इज योर रोल? उसने तो डिसाइड कर लिया उसे प्रॉपर्टी लेनी है, अब आप कहाँ आते हो उसमें? अगर वो इमोशनल डिसीजन है तो मेरा लिमिटेड रोल होगा टू मेक ओनली मेक हिम गिव यू द कैलकुलेशन कि कहाँ से डाउन पेमेंट लाएगा, कौन सा एग्जिस्टिंग एसेट वो ब्रेक कर डाउन पेमेंट लाएगा, सो दैट एसेट्स आर ऑप्टिमाइज्ड. और उसको ईएमआई देखना पड़ेगा कि कितना ईएमआई आएगा, ओके, एंड सो दैट इट डजंट हैम्पर हिम. बेसिकली उसको ईएमआई का प्रोविजनिंग करना, कैलकुलेशन करना मेरा काम होगा, एंड टू डू द डाउन पेमेंट. अगर उसका इमोशनल एसेट है उसको तो मैं बाइंग डिसीजन में मदद नहीं करूंगा. इसमें टैक्स होगा या फिर फ्यूचर कुछ लायबिलिटी ऑफ द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वगैरह, ये सारी चीजें भी आप उनको अगर इन्वेस्टमेंट है
तो कैपिटल गेन टैक्स आप जानते हो कि अभी रिसेंटली नया बजट में डिक्लेयर हुआ कि इट इज फ्लैट एट 12.5%, बट प्रॉपर्टीज विच आर बिलो बिफोर जुलाई 2023 दे आल्सो कैन टेक द इंडेक्सेशन बेनिफिट एंड इट इज फ्लैट 20%. So ये सारी चीजें आप उनको बता के हाँ, आप उनको हेल्प कर सकते हैं. एब्सोल्युटली. तो अगर ये तो हो गया बायर साइड में, सो इन केस ऑफ अ सेलर, व्हाट डू यू एडवाइज देम व्हेन दे आर सेलिंग द प्रॉपर्टी? यू आर नॉट अ एजेंट ऑफ रियल एस्टेट, you are a financial advisor. But if you become a real estate agent, then it becomes a conflict of interest. But as a financial advisor, what is your scope? Or when it comes to they are selling and they come to you for advice कि मुझे बेचना है, ये मेरा प्राइस है, मुझे बताओ अब क्या करना है. मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट को 1 करोड़ में प्रॉपर्टी बेचना है, राइट? उसको ऑफर आता है 95 lakhs का, लेकिन वो बोलता है नहीं मेरे को 1 करोड़ में ही बेचना है. अगर एनालाइज करोगे वो 5 लाख का लॉस इज व्हाट 5% ऑफ दैट एंटायर प्रॉपर्टी वैल्यू. अगर उसने वो ऑफर नहीं लिया वो टाइम पर, और अगर उसको हमको लगता है कि वापस से 3-4 महीना जाएगा, इट डजंट मेक उसकी अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो जाती है, कोई और इन्वेस्टमेंट रहा बीच में. एब्सोल्युटली, बिकॉज अगर उसको वो और हम लोग बोलते हैं कि 95 lakhs में करो, आई वुड ट्राई टू गिव यू more than that 5% returns in some other avenues, in some other investment avenues. वो डिसीजन लेना सेलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है वो 5 लाख के लिए वो डील नहीं हो रही है और 6 महीने रुकता है. हाँ, 6 महीने में वो 5 लाख उसको मिल जाता है, लेकिन उसका तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, कहीं और इन्वेस्ट कर लेता था, या फिर कहीं और प्रॉपर्टी ले लेता था, और उस 6 महीने का टेंशन भी पाल रहा है, लिक्विडिटी भी नहीं मिल रही है, right? And many times he might land up selling it for 95 lakhs, but after 6 months, after so 6 you have months, lost that interest of whatever for that 6 months. So that is where you come in there. So your advice would be to the advisors to give a good advice to people, absolutely, so that there is no biasness when it comes to selling or buying of property, and you retain the customers for lifetime. Yes, and show calculations on table. That's important. Yeah, because अगर आप without calculations सिर्फ बोलते जाओगे तो client is not going to believe you for long time. Calculations दिखाओ, analysis करके दिखाओ. That's very important. Great. So if I ask you certain questions like a kind of a rapid fire, so I would like to ask you certain things which you probably have to give me an answer on one statement or one word. Real estate or mutual fund? Mutual fund. Stocks or mutual fund? Mutual fund. FDs or mutual fund? ये straightforward answer है, mutual fund. FDs or real estate? Real estate. Real estate long term or mutual fund short term? Real estate long term or mutual fund short term? Real estate long term. Yes. Okay. So if you look at someone who is going to, if someone has a target of making 100 crore का portfolio at the age of 30 with a salary of about 2 lakh rupees, you think it is possible? हाँ, अगर आप, there is a simple rule that we keep telling, 15,000 अगर आप 15 साल तक डालते हो, and if you can get 15% rate of return, म्यूचुअल फंड में आपको 1 करोड़ बन सकता है. 15 पॉसिबल है. So one last thing, if you can give some advice to our viewers on a nutshell, whatever we have spoken so far, if you can summarize it and tell them what they can do, and what I feel as an individual, if I am not a professional and I am just someone at the age of 30 or 40 or 50 earning some money and I have no idea, what would you advise me in a bullet form, point forms कि ये चीजें आप करो तो आपका फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा रहेगा, एंड दैट्स हाउ वी एंड इट. एडवाइजर के लिए मैं पहले बोलूंगा, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कि स्टार्ट डूइंग गोल बेस्ड फाइनेंशियल एनालिसिस, और गोल बेस्ड फाइनेंशियल एनालिसिस करने के बाद ऑफर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एज सॉल्यूशंस. एक नॉर्मल कस्टमर को मैं बोलूंगा कि एक छोटा थंब रूल रखना, मैक्स 60% ऑफ योर इनकम शुड गो फॉर योर एक्सपेंसेस, जो भी खर्चे हैं. 15% आपको मिनिमम फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में रखना है, जहाँ पर आप इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कर लो.
एंड 20 to 25% जो बाकी का पैसा बचता है वो आप वेल्थ मैनेजमेंट में डालो जहां पर आपका वेल्थ ग्रो हो जाए. सो आपका फ्यूचर ऑल्सो इज प्रोटेक्टेड, फ्यूचर ऑल्सो इज ग्रोइंग, योर मनी, एग्जिस्टिंग मनी दैट यू हैव बिल्ड, दैट ऑल्सो इज प्रोटेक्टेड थ्रू रिस्क मैनेजमेंट. और खर्चा अगर आपने लिमिट कर दिया ना तो आपके वांट्स कम हो जाएंगे और नीड्स में आपका गुजारा हो जाएगा. दैट्स द फ्रेमवर्क. ग्रेट. सो सचिन तेंदुलकर ने अभी सेंचुरी मार ली है. सो आई मीन सी आई एम इनटू दिस फील्ड फॉर मोर देन अ डेकेड नाउ. Yes. I also understand some kind of wealth management to a Yes. certain limit. But Because you have today, come from that background. yeah, so today there is a insight, more of insight on how when I know everything attitude comes, then you get into a problem. Yes. So if you go into a situation where you kind of understand from an advisor like you and like your advisors which take help of the technology, and as you rightly said, writing it down on a piece of Yes, paper, yes. and for that matter in case of Yes. your app which helps people to understand where they stand, what they can do, what they can stop, what they can continue, and what they can put their vision to do that goal setting. Yes. So today I have learned more about, I know about goal setting, Yes. but when you hear it from people again and again, Yes. so we tend to implement it regularly. Yes. Otherwise, we get lost in our daily routine. Yes. So thank you for making us understand the importance of goal setting, importance of wealth management, financial advisory for agents, for financial advisor, and for the clients, and also to understand how we can grow our wealth Yes. for people, and how we can be safe while doing it, protect ourselves, protect our money, Yes. protect our family for that matter, because anything can happen anytime, good or bad. Yes. Be prepared for it, and that's how the life will sail smoothly. Thank you so much, Sachin. Pleasure for is mine, Prasad. coming. Thank you so much for Yeah. having me here. Thank you. I'm sure what you're doing is an amazing job. If you're spreading financial education about real estate investments, I think that's going to go a long way Sure. for your audience in terms of their personal growth. I Thank think fantastic. Thank you. Yeah. Great.